हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम सीबीएसई के एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन जनरल ऑल्सो अगर हमें जेनेटिक्स के बारे में बहुत बेसिक्स जानना होता है कि व्हाट आर जीन्स और हाउ जीन्स आर एक्टिंग, हाउ जीन्स आर बिहेविंग. So for that and about the characters also, that how our characters they are transferring from one generation to another generation, means from parents to offspring and generation over generation. So who actually worked on this, how these laws of inheritance are being started, and then what are mutations, how these lead to various genetic disorders and all. Okay. So in case of hereditary, there is some role of variation also. So how this variation is existing. So name of the chapter is principles of inheritance and variation, means how inheritance, how characters are moving from one generation to another generation. So have you ever wondered that why an elephant always give birth only to a baby elephant, not to some other animal? Similarly, why a mango seed forms only a mango plant, not any other? So, given that they do are the offsprings identical to the parents, whether it is plant or animal, their children, their offsprings, they are similar to the parents. Or do they show some differences in some of their characteristics? Yes, they are showing some differences. Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes they are so different? So if they are looking so similar, might be because they are identical twins. And these are several relatable questions which are dealt with scientifically in a branch of biology which is known as genetics, that is study of genes, that is study of inheritance. This subject deals with inheritance as well as variation also. So, variation of characters from parents to offspring. Inheritance. So, first of all, what is inheritance? Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. So, it is the basis of heredity. On the other hand, variation is the degree by which progeny differ from their parents. So these are two different terms. So inheritance, this is regarding passing of characters from parent to progeny. Progeny is offspring or children or kids. Then humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. So, one of the reason of variation, that is in sexual reproduction, they exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for the organisms. Now, if we are saying that one of the reason for variation is sexual reproduction, how come it be? We all know that there are two types of divisions. So, whenever we are talking about cell division. Cell division. There are two types of cell divisions, mitosis and meiosis. Mitosis is equational division where number of chromosomes remains same, and meiosis is of two types, meiosis 1 and 2, which is reductional as well as equational. In case of meiosis 1, prophase 1, which is a elaborative stage. In prophase 1, there is substages also. Leptotene is there, zygotene is there, pachytene is there, diplotene is there, and diakinesis. Now, what happens during pachytene or pachytene? Crossing over occurs. Means suppose if two chromosomes are there, this happens. So two chromosomes are there
they cross over, means we are definition is there, exchange of segments of non-sister chromatids of, these are non-sister chromatids of homologous chromosome, is known as crossing over. Because of crossing over, what will happen? So what are the products of crossing over then? You'll see that some variation is existing in the chromosomes. So that's why it is written here. So what that first form of variation, if we are saying in the population, it is coming, that is because of sexual reproduction. So why it is written sexual reproduction? Because in sexual reproduction, while formation of gametes, meiosis occurs. So in meiosis, during Pachytene stage, crossing over occurs, and that is actually responsible for the variation. So when we are talking about variations, they are naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for the organism that possess desirable characters. For example, through artificial selection and domestication from the ancestral species, we can select like wild cows. We have well known Indian breeds like Sahiwal cows in Punjab. So we must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific criteria of the phenomenon. So they were just selecting on the features and domestication. So artificially they were selecting depending upon the features, the known good features, and their domestication. They domesticated this cow Sahiwal. But they were not, earlier people were not aware about the scientific idea behind this inheritance or variation or selection. Then Mendel came. Mendel's law of inheritance, when we'll discuss regarding this, it was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. And who made it possible? It was Gregor Mendel. He conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years, that is from 1856 to 1863. So he worked for 7 years and he proposed laws of inheritance in living organism. During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time why Mendel was actually successful. Because before Mendel, many scientists were there who did hybridization experiments and they find that variation is there. But they were not able to give correct evidences. मीन्स वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको उनका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मेंडल गेव. उसका रीज़न क्या था? ही वॉज द फर्स्ट टाइम हु डिड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स वर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी. सबसे पहले उसने जो भी सैंपल लिया था उस सैंपल पे मैथमेटिकल लॉजिक लगाया और उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया. सेकंड, वो क्यों सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज. लार्ज सैम्पलिंग साइज से क्या होता है? डेटा को क्रेडिबिलिटी मिलती है. सो दिस विद ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड. देन also the confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants. थर्ड उसने क्या किया था? He did experiments on the successive generations of his test plants. So number one, what he did, whatever experiment he did, so in all these experiments he did statistical analysis and put mathematical logic. Secondly, sample size was large. So larger sample size से उसमें credibility बढ़ गई. थर्ड, उसने सक्सेसिव जनरेशंस को भी स्टडी किया कि उनका डेटा क्या आ रहा है.
proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated idea, कि वो कोई आइडिया नहीं दे रहा है, उसने अपने आइडियाज को स्पेसिफिक प्रूफ्स दिए, बिकॉज ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। और अब उसके सक्सेसफुल होने के, अब गार्डन पी में भी देखो उसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। लाइक उसने इसमें थोड़ा सा, मैं इसको और नीचे करके दिखाती हूँ आपको, like here. So he used 7 contrasting characters and accordingly he did the experimentation, hybridization experimentation, like seed shape. Dominant trait in seed shape, it was round, and recessive trait was wrinkled. Now before moving ahead, let me give you an overview. देखो इस पूरे चैप्टर में हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स यूज करेंगे, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या टर्म्स है। Like we will learn about gene. Gene is a segment of DNA. Then हम एक और टर्म यूज करेंगे, जीनोटाइप। जब हम अल्फाबेटिकली कुछ टर्म लेते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीनोटाइप। और ये जो जीनोटाइप होता है ये पेयर में आपको हम शो करेंगे। लाइक अगर हम उसको दिखाते हैं कि हाइट है, ठीक है, हाइट के लिए हम डिफरेंट रेट लिए हमने, फिर कैपिटल टी जो होगा ज़्यादा हाइट के लिए है और टॉल के लिए, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ के लिए। सो ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है जीन की, जीन फॉर हाइट में 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं, दीज आर नोन एज एलील्स, ठीक है। सो वन विच इज एक्सप्रेसिंग इन एवरी जनरेशन, दैट इज द डोमिनेंट वन, एंड वन विच इज एक्सप्रेसिंग इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, कि जब ये नहीं होगा तब एक्सप्रेस करेगा, उसको रिसेसिव कहते हैं। तभी यहाँ पे और फिनो, एक और टर्म हम यूज करेंगे फिनोटाइप, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो अगर हम इसको अल्फाबेटिकली फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके जीन के अलीलिक फॉर्म्स में लिखते हैं, दैट इज अ जीनोटाइप। और अगर हम लिखते हैं कि टॉल है, ड्वार्फ है, दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट इज फिनोटाइप। और ये याद रखें कि डोमिनेंट वो होते हैं जो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव जो होंगे दे विल एक्सप्रेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। मीन्स इफ आई एम राइटिंग स्मॉल टी then it will be dwarf. So like 7 characters, contrasting characters which were used by Mendel. The first one is seed shape. Round is dominant over wrinkled one. In seed color, yellow is dominant over green one. In flower color, violet flower color is dominant over white. In pod shape, full pod shape is dominant over constricted. इन पॉड कलर, अगेन वहाँ पे येलो था, यहाँ पॉड है, पॉड समझते ना, मटर का पूरा मटर, उसका दाना हो गया सीड। सो मटर जब हम लेते हैं तो उसमें पॉड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो। देन कम्स फ्लावर पोजीशन। सो फ्लावर पोजीशन में क्या होता है, एक्सियल इट इज डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल। सो नॉर्मली हम कहते हैं टॉप पे है, नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा फूल जो हैं, ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं पी प्लांट के, वो एक्सियल पोजीशन पे हैं। सो एक्सियल पोजीशन जो है इट इज़ डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। देन स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। सो दीज आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विच आर टेकन इन द पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। नाउ कमिंग टू द सक्सेस। सो इन सक्सेस वी टोल्ड यू कि नंबर 1 उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, नंबर 2 डेटा साइज किया जो बड़ा था उसका, देन थर्ड आ जाता है कि उसने सक्सेसिव जनरेशन्स में भी एक्सपेरिमेंटेशन किया। सो मेंडल उसके बाद आता है कि ही इन्वेस्टिगेटेड दीज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी, और हर केस में उसको 2 अपोजिंग फीचर्स मिले। 2 अपोजिंग, 7 का जैसे आपको बताया टॉल है, उसका हाइट टॉल है और ड्वार्फ है। सिमिलरली पॉड कलर ग्रीन है या येलो है। देन पॉड का शेप लेते हैं, कंस्ट्रक्टेड है कि इन्फ्लेटेड है। सो उसको हर किसी में 2-2 का फैक्टर मिले, अपोजिंग ट्रेट्स। सो दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and complexity inherent in them. Now, Mendel conducted
Such artificial pollination or cross pollination, these experiments using several true breeding pea lines. True breeding में क्या होता है कि उसको कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन वाली लाइंस मिलती रही, उन पे उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया. पहले तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस पता है कि नहीं? सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि सेम प्लांट का जो उसका पोलन है वो उसी की सेम प्लांट की फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर गिरता है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, फीमेल प्लांट डिफरेंट है, मेल प्लांट डिफरेंट है, और डिफरेंट मेल प्लांट जो है उसका पोलन जो है इस फीमेल प्लांट पे के स्टिग्मा पे अगर गिरता है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो मेंडल सक्सेसफुल होने का क्या रीजन था? दैट ही कंडक्टेड सम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन द एक्सपेरिमेंट्स. और ये उसने किया. सेकेंडली अपने एक्सपेरिमेंट्स में ही यूज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन. और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होती है? इट इज़ द वन विच अंडरगॉन कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, और एज अ रिजल्ट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस आती है एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन सेम इज कमिंग. सो ऐसी उसने, जैसे होमोजाइगस आ जाती है, सो ऐसी उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग पीज plant varieties ली as pairs, were similar except for one character with contrasting traits. So some of the contrasting traits selected were smooth and wrinkled, yellow और green. ये जो सारे आपको 7 बताए. तो उसने क्या किया? नंबर 1 उसने ग्रीन प्लांट पी प्लांट लिया. उसने पी प्लांट लिया, वो लकी था कि उसने पी प्लांट लिया, जिसमें उसने क्रॉस पॉलिनेशन करने में वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने उसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस सिलेक्ट की. ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है कि सेवरल जनरेशन तक एक ही तरह की जिनकी क्रॉसिंग हुई हो, ब्रीडिंग हुई हो, तो उनके भी उसने फिर आगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दो ही थे अपोजिट ट्रेट्स वाले, 7 फीचर्स को आगे एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था. ओके अब हम और डिटेल में जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें आप ये देखो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हम पहले बता के आई हूँ, कैरेक्टर क्या है और उसका ट्रेट क्या है. कैरेक्टर अगर स्टेम हाइट है तो टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव. फ्लावर कलर है तो वॉयलेट इज डोमिनेंट, वाइट इज रिसेसिव. फ्लावर पोजीशन है, एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव. pod shape है, inflated is dominant and constricted is recessive. Then pod color है, green is dominant and yellow is recessive. Seed shape है अगर, उसमें round is dominant and wrinkled is recessive. Seed color है, yellow is dominant over green. So this is the flower of pea plant having petals, then stigma is there, anthers are there, stamen is there and carpel is there. देन इस केस में ये आपको क्यों बताया गया? जब हम कहते हैं कि क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन एज मेल पार्ट एंड अदर एज फीमेल, तो उसको मेल और फीमेल कैसे बनाया जाता है? सो इफ़ वी आर सेइंग दिस इज़ द फीमेल, इसको फीमेल करना है, तो इसके जो ये यहाँ पे एंथर्स होते हैं इनको कट कर दिया जाता है, इनको सिजर से, जिसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं, तो इट विल बिकम फीमेल प्लांट. ऑन द अदर हैंड दूसरा मेल कैसे कि उसके एंथर्स हैं, उन एंथर पे पोलन है और ट्रांसफर ऑफ पोलन से वो बन जाता है फिर मेल. ओके हम बात करें अब इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन की. ये देखो, अब आपके पास एक फीमेल है, एक मेल पेरेंट है, ट्रांसफर ऑफ पोलन इज पॉलिनेशन. एज अ रिजल्ट यू विल गेट, सो कैसे ये क्रॉसिंग की, क्रॉस करके ये जो बना है इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, और इसके सीड्स को जो ग्रो करके ये सारे प्लांट्स बनेंगे, ऑल आर हाइब्रिड्स. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन सच एक्सपेरिमेंट where tall they are crossed with the dwarf pea and then inheritance of one gene. So he collected the seeds produced as a result of this cross, and the first hybrid generation is known as first filial generation or progeny. Then he observed that all the progeny plants were tall
like one of the parents, none were dwarf. Then he made similar observation for the other pairs of traits and found that the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. So Mendel then self-pollinated the tall F1 plant, and this surprise found that in the first filial generation or in the second, some of the offsprings were dwarf, and the character that was not seen in F1 was also expressing now. So this was very surprising for him. So the proportion of the plants that of dwarf and tall, he found that 1/4 of the F2 plants they were dwarf, while 3/4 they were tall. So tall and dwarf, they were identical their parental type and did not show any blending. So that is, all the offspring were either tall or dwarf. None were in between the height. So this I'll just show you because it's very clearly mentioned here. If we check about their ratio, so 3:1 is coming, lacking means, but there is no blending. Neither at F1 nor at F2 कोई भी प्लांट आ रहा है, लेकिन वो पेरेंटल जैसा ही आ रहा है. So let me show you here. Yeah. आप ये देखिए इसमें जब टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट को क्रॉस किया है ड्वार्फ के साथ, ये फिनोटाइप लिखी है. अगर मैंने इसकी जीनोटाइप लिखी टॉल, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब एक जीन दिया ना तो एक अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है. उसका कैपिटल वाला डोमिनेंट होगा, रिसेसिव वाला उसका रिसेसिव स्मॉल लेटर होगा. सो और हमें उसको इसको हम बोलते हैं, अगर मैंने लिखना इसको, तो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट. एक जैसा है ना, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है. ओके. और जो इस साइड पे है स्मॉल टी है ना, तो दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. ओके. होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव. सो F1 जनरेशन, आप इसका कॉम्बिनेशन बना के देखो. ये कैपिटल टी के साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, हमारे पास 4 आते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 प्लांट आएंगे. 4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो जीनोटाइप रहेगी. जब आप इनको क्रॉस करते हैं उसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं या बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन. अब इनके टॉल, दो कोई टॉल लें तो अब इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. जब इन्हीं को, क्योंकि चारों एक ही तरह के हैं, आपस में इनको क्रॉस करते हैं तो उसको सेल्फिंग कहा जाता है. तो जब इनकी सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग में हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 तो टॉल आ रहे हैं, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ. और अगर आप इसका चेकर बोर्ड बना के, मीन्स ये आपकी तरफ फीमेल प्लांट है, ये मेल है. ओके. अगर हम इनका चेकर बोर्ड बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो हम ये कह सकते हैं इसमें, या अब ये देखो कि ये वाले जो है ये हमारा है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो अगर अब आप यहाँ पे बता सकते हो क्या कि जब हमने टॉल को ड्वार्फ के साथ किया, F1 टॉल आया, क्या कोई इंटरमीडिएट आया? वो एक पेरेंट से मिल रहा है, वन ऑफ द पेरेंट टॉल से. अब जब F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फिंग किया तो नेक्स्ट जनरेशन में 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, या 1/3 ड्वार्फ एंड 3/4 जो है आपके पास टॉल आ रहे हैं. बट अगेन देर इज नो ब्लेंडिंग, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं आ रहा है, चाहे F1 हो चाहे F2 हो. पहली तो आप उसमें ये बोलेंगे दे आर रिजेंबलिंग ईदर ऑफ द पेरेंट्स. देन यू विल स्टडी अबाउट देयर रेशो, कि किस रेशो में आ रहे हैं और डोमिनेंट किस रेशो में आ रहा है और रिसेसिव किस रेशो में आ रहा है. ओके. सो नेक्स्ट अबाउट द थियोरी पार्ट दैट वी वर जस्ट चेकिंग. तो उसमें आप ये देखो,
Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passing down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations. So उसके कहने के मुताबिक कि कोई चीज़ है, जब हम कह रहे हैं टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया और टॉल प्लांट आ रहा है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, हम फ्यूज करवा रहे हैं, तो गैमीट्स को फ्यूज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब गैमीट्स के थ्रू कुछ सक्सेसिव जनरेशन में पास हो रहा है। तो उसने उसके लिए वर्ड यूज किया था। व्हाट वर्ड ही यूज्ड? दैट वाज फैक्टर्स। नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। सो जीन्स आर देयरफॉर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस and they contain the information that is required to express a particular trait in an organism. So genes which code for a pair of contrasting pair is known as allele. So there are different forms of same gene. So ये allele का definition है। जीन को मेंडल ने कहा कि कोई चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, उसने उसको फैक्टर बोला, लेटर ऑन वो जीन है, दैट इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन साथ में हम ये कह रहे हैं कि ये जो जीन्स होते हैं दे एक्चुअली एनकोड अ पेयर ऑफ, दे आर कोडिंग अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स नोन एज एलील्स एंड दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। तो अब उसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया कि इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिम्बल्स फॉर ईच जीन then the capital letter is used for the expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other. For example, in case of the character of height, T is used for the tall, small t for the small. So this we have already done. अगर capital T और small t आते हैं, ये homozygous है, जिसको homozygous dominant और homozygous recessive बोलते हैं। और अगर आप इनको इस सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज जीनोटाइप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप इसको वर्ड में लिखते हैं टॉल एंड ड्वार्फ, दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है। सो एज मेंडल फाउंड दैट फिनोटाइप ऑफ द F1 heterozygote TT टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी। ये इसको हम हीट्रोजाइग्योट बोल रहे हैं, कैपिटल टी। इसका फिनोटाइप कि दिखने में ये कैसा है इज लाइक कैपिटल टी। जो कैपिटल टी में टॉल आ रहा है तो होमोजाइगस डोमिनेंट होके, तो कैपिटल स्मॉल टी हेट्रोजाइगस होके क्या आएगा? वो भी टॉल। सो ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहते हैं? पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, वन डोमिनेट्स द अदर एज इन F1, हेंस उसको हम डोमिनेट बोलते हैं। while the other factor is recessive. So capital T is depicting for tallness, small t for dwarfness. So that is recessive. He also observed identical behavior of the other traits. जो हमने 7 contrasting traits लिए थे, अगर हम उसमें seed shape ले लेते हैं तो राउंड में हमने seed shape की जब बात करते हैं, सपोज seed shape है, हम उसको R से लेते हैं। R मीन्स आपने अल्फ़ाबेट एक ही लेना R, उसका कैपिटल और वो लेना है लोअर केस। सो R फॉर डोमिनेंट है, दिस फॉर रिसेसिव है। अब क्योंकि जीन जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है कंट्रास्टिंग में, तो आपने कैपिटल RR और स्मॉल RR लिया, सॉरी। अब ये पेरेंट है, मीन्स कोई फीमेल हो सकता है, एक मेल हो सकता है। अब इसके 2 गैमीट बने, कैपिटल RR, और इसके भी 2 गैमीट बने, ओके, कैपिटल RR और स्मॉल RR। अब इनको क्रॉस करवाया, तो क्रॉस में दिस में क्रॉस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, सो 4 कैपिटल R स्मॉल R आ गए। इसकी सेल्फिंग किया, सेल्फिंग मतलब एनी 2 जो है उनको आपस में क्रॉस किया, कैपिटल R विद कैपिटल R स्मॉल R, हेट्रोजाइगोट विद हेट्रोजाइगोट। सो विल गेट, हमें इसमें क्या मिलेगा? 1 कैपिटल RR, 2 कैपिटल R स्मॉल R एंड 1 स्मॉल r स्मॉल r। इजी वे क्या होता है? ऐसे एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, उसके अंदर हम चेकर बोर्ड बनाएंगे इसके अंदर हम इनके R और स्मॉल R एंड स्मॉल r इनकी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे।
1 होमोजाइगस डोमिनेंट बन जाएगा, 2 हीट्रोजाइगोस बन जाएंगे और 1 होमोजाइगस रिसेसिव बन जाता है. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट. और सिंगल ट्रेट में हमने पढ़ा एक और चीज, जब हम सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस शो करते हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म मोनोहाइब्रिड, क्रॉस बिटवीन कैपिटल TT and small tt for a single gene. So this is known as monohybrid cross. So from the observation that recessive parental trait is expressed without any blending in F2, we can infer that when tall and dwarf plants produce gametes by the process of meiosis, the alleles of parental pair separate and segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete. So this segregation of allele is a random process. So there is 50% chance that gamete containing either allele has been verified by the result of crossing. So ये बताया ही है कि जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो ब्लेंडिंग तो नहीं है, पर गैमीट्स में चांसेस है कि उन दोनों में से एक एक एलील ही आएगा, या कैपिटल T या कैपिटल T, स्मॉल t या स्मॉल t. सो एक एक एलील ही आता है और वो फिर सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. और हम उसको इजी वे में, ये जो बनाया, जो मैं पहले भी बना रही थी, इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं और इसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं. प्यूनेट वाज द एक्चुअली C. Punnett, he is the British geneticist who developed this Punnett square or the checkerboard. So इसमें easy हो जाता है graphical representation देना to calculate the probability of all possible genotypes of the offspring in a genetic cross. So the पॉसिबल जीनोटाइप क्रॉस क्या है, जो उससे हमें देख के पता चल जाता है. अगर आप देखोगे इसमें इन दिस चेकर बोर्ड, फिनोटिपिक रेशो देखना. फिनोटिपिक एक्सटर्नली जो कैसे अपीयर होता है, तो एक्सटर्नली वी आर फाइंडिंग कि कितने टॉल हमें नजर आ रहे हैं इसमें, 1 2 3. सो 3 टॉल इज देयर एंड 1 ड्वार्फ इज देयर. अगर जीनोटिपिक देखना, then 1 homozygous dominant, 2 heterozygotes are there and 1 homozygous recessives they are coming. Okay, so when fertilization takes place, the pollen grains of type T, they have 50% chance to pollinate T, और ऐसे ही small t को आप वर्डली भी लिख सकते हो, चेकर बोर्ड की फॉर्म में भी इसको सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हो. सो एक चीज़ यहाँ पे देखो, तो इन्होंने इस चीज़ को कैसे शो किया है कि हाफ चांसेस ना, हाफ ऑफ कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ स्मॉल t का स्क्वायर करके, सो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मीन्स मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास थे कैपिटल T और स्मॉल t, सो इनके क्या चांसेस रहते हैं, सो इनके क्या चांसेस हो गए, सो कैपिटल T प्लस 2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस स्मॉल t स्मॉल t. सो यही रेशो वैसे भी आता है, ग्राफिकली भी आता है, स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली. सो मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2. अब उसने क्योंकि किया था, उसने सक्सेसिव जनरेशंस तक काम किया था, तो ही पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यूड टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4. कि फर्दर हमने अभी तक 2 जनरेशन आपको चेकर बोर्ड में दिखाई. F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें डोमिनेंट्स आ रहे हैं. F2 जो है वो सेकेंड फीलियल जनरेशन है, जिसमें डिफरेंट रेशो में अगर डोमिनेंट की एक बार ड्वार्फ आ रहा है. और F3 और F4 में भी हम देख रहे हैं कि ड्वार्फ्स आर कमिंग. सो ही कंक्लूडेड दैट जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ्स वाज, क्यों, कैसे उनको पता चला कि ये ड्वार्फ जो है वो होमोजाइगस स्मॉल t है, बिकॉज व्हेन ही कंडक्टेड सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स, पॉलिनेशंस होती रही, सेल पॉलिनेशन F2 की F3 में, F3 की भी सेल पॉलिनेशन हुई F4, सब में अगर ड्वार्फ आ रहा है, इसका मतलब जो ड्वार्फ्स होते हैं देयर जीनोटाइप इज एक्चुअली स्मॉल t, दैट इज होमोजाइगस. फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स देन इट इज from the preceding paragraphs it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype, it's not possible to know the genotypic composition. So that's for example whether a tall plant from F1 or F2, अगर हम देखते हैं कि F1 या F2 में tall plant ये दोनों हो सकते हैं. अगर टॉल बोला हमें किसी ने, तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये कैपिटल T है, क्योंकि जो हेट्रोजाइगोट फॉर्म में है, दिस इज ऑल्सो टॉल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट T एलील इन बोथ.
So we cannot predict. Therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, क्योंकि ड्वार्फनेस या रिसेसिव एलील को जानने के लिए कि वो होमोजाइगस रिसेसिव है, उसके लिए तो ये क्या है, आपने F2 को भी सेल पॉलिनेट किया, F3 में, F4 में आपको बार बार वो ड्वार्फ कैरेक्टर नज़र आ रहा है, तो आप कहते हो कि ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर हमने देखा है कि टॉलनेस में जो कि डोमिनेंट है वो हम नहीं पता कर सकते, तो उसके लिए मेंडल ही क्रॉस टॉल प्लांट विद द ड्वार्फ प्लांट एंड दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। सो उसने अगर टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया तो हमेशा ये आ रहा है कैपिटल टी, लेकिन अगर इसको क्रॉस किया तो दे विल गेट दिस वन। सो टॉल प्लांट कौन सा लेना उसने टेस्ट क्रॉस के लिए, हिट्रोजाइगस। तो 1:1 रेशो आती है टेस्ट क्रॉस। In typical test cross, an organism P plant here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined. So is crossed with recessive instead of self crossing, कि self crossing ना करके normally क्या करते हैं हम F2 में self crossing करते थे, लेकिन अगर हम self crossing ना करके अगर tall plant को जो F1 में आया उसको हम recessive से cross कर दें, then we'll get 1:1 ratio. Okay. So that is known as test cross. So here you will check कि homozygous recessive is there. Homozygous recessive है हमारे पास और homozygous recessive this side also. So homozygous recessive में हमारा रिजल्ट ये सेम वैसे ही हम टेस्ट क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि आपने उसके W जो है वो हिट्रोजाइगोट फॉर्म में है, okay. So 1:1 ratio will come. So here you can check capital, so W, small w, capital W, small w. So in that we are getting 2 capital, means ये 2:2 means 1:1 ratio is coming. So based on this observation on monohybrid cross, Mendel proposed 2 general laws. One is the principles of law of inheritance, one is the law of dominance, another is the law of segregation. So what is law of dominance? अभी जो हमने पढ़ा, all the characters, traits, these are controlled by factors, discrete unit factors जिनको हम genes बोलते हैं. Then second, factors occur in pairs, या वो कैपिटल टी या स्मॉल टी है, दे आर अकरिंग इन पेयर जिसको हम एलील बोलते हैं. थर्ड है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. सो नंबर 1 है कि एवरी ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू every trait, every character is controlled by 2 factors. सेकेंड, हर फैक्टर के 2 एलील हैं, 2 यूनिट हैं. तीसरा क्या है, उन दोनों में से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. दिस इज रिगार्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस. देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि जब, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, गैमीट फॉर्मेशन में ये जो जीन्स हैं, ये डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स हैं, इनमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं हो रहा, दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. So this law is based on fact that alleles do not show any blending, that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at F1 stage. So though the parents contain 2 alleles during gamete formation, factors or alleles of pairs segregate from each other such that gamete receives only one of the 2 factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes which are similar, and in case of heterozygous dissimilar, 2 kinds of gametes will come, one allele with equal proportion. So this is all about inheritance. Means in the beginning when we learnt that there is inheritance, transfer of character from parent to offspring. Some variation is there. Naturally, it is because of sexual reproduction, because of crossing over at the Pachytene stage. Then many hybridization experiments were done by many of the scientists, but Gregor John Mendel, he got success because
He studied these hybridization experiment in the successive generations. He applied statistical analysis and logic on it, and he used huge data for it. Then he also used Garden P, and in Garden P it is bisexual. Its life cycle is short, and it is having many contrasting features, so that different kinds of experiment of hybridization were done. Then what was his understanding? That was regarding two types of laws: law of dominance and law of segregation. In law of dominance what he found कि उन 7 कैरेक्टर में से कोई भी कैरेक्टर ले लो, जब उसने उनका इनहेरिटेंस किया, किसी को फीमेल लिया, किसी को मेल लिया, तो उसने ये देखा हर जनरेशन में पहले तो उसने होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव लिया। F1 में उसने देखा कि हर जनरेशन में वन ऑफ द पेरेंट जो है उसका फिनोटाइप आ रहा है, कोई ब्लेंडिंग, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं शो हो रहा। और F3 F4 में जो सेम कैरेक्टर अगर आता जा रहा है तो उसका हिसाब से ये है कि जो भी ड्वार्फ होंगे, जो भी रिसेसिव्स होंगे, वो रिसेसिव जो हैं वो हर जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर डोमिनेंट को उसको चेक करना है तो उसके लिए उसने हिट्रोजाइगोट डोमिनेंट जो था उसको क्रॉस किया है होमोजाइगस रिसेसिव से, और उसका रेशो आता है 1:1, तो उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। सो इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हाट ही वाज सेइंग दैट व्हेन alleles or these contrasting these discrete units of the factors, they are moving from one gamete to another gamete during segregation, during sexual reproduction, they are actually segregating independent of each other in any combination. There is no blending, no mixing as such. One of the factor is actually moving, and then वो अगर हम फर्दर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में देखते हैं या सेकंड फीलियल जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल में ऑल डोमिनेंट्स आर कमिंग, एंड सेकंड फीलियल जनरेशन जो होती है उसमें 3:1 की रेशो में आती। So this is all for today's presentation and today's lecture also. Now tomorrow we'll study about this law of independent assortment, and what is the role of incomplete dominance, and what are the exceptions from the Mendel's inheritance laws. Okay, so till now, thank you so much for watching.